Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, that is geography, and we are on its third part. Today I am going to deliver its 19th lecture, and you know that we are discussing about natural disaster. Today we will going to discuss about natural disasters. It's not weather and climate. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So quickly tell me that name the factors affecting the climate. Number 1 is distance from equator, distance from water bodies. Then comes the elevation or distance from the sea level or height from the sea level, and the direction of the winds. Okay, my dear students, so it's time for activity now. I am showing you picture. आपको स्क्रीन पे पिक्चर नजर आ रही है. मुख्तलिफ जो हैं आपको डिजास्टर्स नजर आ रहे हैं क्योंकि ये काफी तबाहकुन है. तो क्या इन पिक्चर्स को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा नेचुरल डिजास्टर है? दिस कुड बी अर्थक्वेक. वेरी गुड. ठीक है, तबाही, जमीन का इस तरीके से फट जाना, दैट इज अर्थक्वेक. दिस इज वॉल्केनिक एरप्शन. दिस इज, ये क्या है? दिस इज अ साइक्लोन. ठीक है, ये हवा का बहुत बड़ा सा चक्कर होता है इस तरीके से, इसको हम कहते हैं साइक्लोन. हवा का बगुला भी आप इसको उर्दू में कह सकते हैं. ये तमाम जो है ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ये नेचर में अपेयर होते हैं, इस वजह से इनको नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है. डिजास्टर जो है तबाहकारी होती है, और नेचुरल इसको इस तरीके से कहा जा रहा है क्योंकि ये नेचर की वजह से हो रही है, ये नेचर में होती है, इस वजह से दीज आर नेचुरल डिजास्टर्स. सो हम इनके बारे में पढ़ेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम सेफ्टी मेजर्स लेके अपने आप को इनसे महफूज रख सकते हैं. So my dear students, in today's lecture, the students will be able to explain how common natural disasters occur like flood, earthquakes, cyclones and avalanches. So the pre-reading question, which natural disasters you have faced in the past? What did that natural disaster affect people? How did that natural disaster affect the people all over the world? So my dear students, आप पिछले कुछ सालों में क्या आपने कोई नेचुरल डिजास्टर जो है वो फेस किया है, और क्या आपने उस नेचुरल डिजास्टर ने पूरी दुनिया को किस तरीके से इफेक्ट किया, इस बारे में भी मुझे बताएं. मैं आपको एक छोटी सी हिंट देती हूं. एक रीसेंट डिजास्टर अभी गुजरा है, दैट इज द फ्लड. जो पाकिस्तान में अभी फ्लड्स आए थे इन 2022, उनका पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही डेंजरस और बहुत ही बुरा इफेक्ट हुआ था. बहुत सारे लोग जो है वो उससे इफेक्ट हुए, उनके घर, उनके मालो मता, जानवर, रोड्स टूट गई, ब्रिजेस जो है वो उसके साथ पानी के बह गए. तो इट वाज वेरी डिजास्ट्रस और उससे बहुत ज्यादा तबाही हुई. इसके अलावा एक और हिंट है, दैट इज कोविड-19. पेंडेमिक था, और आपको पता है कि ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है, और इसने भी पूरी दुनिया के लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया. लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इसकी नजर हुए, बहुत बीमार हुए. कुछ लोग जो हैं दे इवन lost their lives because of this pandemic. So these all are natural disasters and they affect very badly the human beings. Okay, my dear students, I request you all to please open page number 99 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Natural disasters and safety measures. Natural disasters. An event resulting from the natural processes of the earth that has a harmful effect on human beings, animals, vegetation and water creatures are called natural disasters. So कोई भी ऐसा इवेंट जो कि नेचुरली अकर होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो आपके इर्द गिर्द के लोगों को, जानवरों को, सड़कों को, आपके मालो मता को नुकसान पहुंचाए, तो दैट इज अ नेचुरल डिजास्टर्स, और ये नेचुरली अकर होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम नेचुरल डिजास्टर पढ़ेंगे दैट इज अ फ्लड. So floods, when there is excessive rainfall or snow melt more than normal, it rises the water level in the rivers. The rivers flow over the banks and spread in the nearby dry areas. This is called flood. So my dear students, जब usual से ज़्यादा snow melt हो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये होती है, या बहुत ज़्यादा बारिशें हों, उसकी वजह से जो रिवर लेवल है, आपके इर्द गिर्द के दरियाओं और स्ट्रीम्स का जो लेवल है वो ऊंचा हो जाता है, और पानी जो है वो खुश्की की तरफ बहना शुरू हो जाता है. इसकी वजह से जितने भी खुश्की के इलाके होते हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं, अंडर वाटर चले जाते हैं, और इसको हम फ्लड कहते हैं. अभी रिसेंटली 2022 में जो है बहुत डेंजरस फ्लड आया था, और ये किस वजह से आया था, इसका रीज़न ये था कि तकरीबन जो है 1700
से ज़्यादा जायद लोग जो हैं वो पीपल किल्ड इन दिस फ्लड। और इसकी वजह क्या थी कि मूनसून रेन्स जो थी वो यूजुअल से ज़्यादा हुई पाकिस्तान में, और उसकी वजह से वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, स्नो मेल्ट भी हुई, ग्लेशियर्स मेल्ट भी हुए, और उसकी वजह से रिवर और स्ट्रीम लेवल्स जो है वो इंक्रीज होते गए, और पानी जो है वो खुश्की की तरफ बह के आया, और तमाम खुश्की के जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए, और ये तकरीबन इसने पूरे पाकिस्तान को, चारों सूबों को अपनी लपेट में लिया था। नेक्स्ट इज द सेफ्टी मेजर्स। इससे हम किस तरीके से अपने आप को बचाव कर सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक। देयर इज नीड टू प्लांट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. Banks of river should be made high and strong. It may stop the water from overflowing. Retaining walls should be made on the banks of the river. Dams and barrages can be built to store the water. So my dear students, इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो banks of the river है, यानी कि रिवर दरिया का जो किनारा होता है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए, क्योंकि वो पानी को रोकते हैं। और इसके अलावा जो रिवर बैंक्स होते हैं उनको हाई होना चाहिए, दरिया से उनकी ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि पानी जो है वो, क्योंकि इस तरीके से पानी फ्लो नहीं करता, लेकिन अगर वो नीचे होंगे तो पानी आराम से वहाँ फ्लो कर जाएगा। एक ये तरीका है। इसके अलावा आप बैराजेस और डैम्स अगर उनके ऊपर बनाएंगे टू स्टोर द वाटर, तो मैक्सिमम वाटर को, अगर पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम फ्लड से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं टू सेव अस फ्रॉम द फ्लड्स। नेक्स्ट इज साइक्लोन. सो इट इज एन अदर काइंड ऑफ डिजास्टर. ये किस तरीके से इफेक्ट करता है, लेट्स रीड आउट. A cyclone is a large-scale air mass that rotates around the center of low atmospheric pressure. It causes heavy rains, large storms, strong winds, etc. So, my dear students, cyclones जो हैं ये ऐसे पानी के वाटर बॉडीज के ऊपर जो है ये क्रिएट होते हैं, और ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ जो है ये हवा का बहुत ज़्यादा एक मास होता है, ये लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करता है सर्कुलर मोशन में, एक बगुला सा बन जाता है। और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं फिजाई दबाव जो है, कम फिजाई दबाव जो है ये उसकी तरफ मूव करता है, और इसकी वजह से बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो बारिशें भी आ सकती हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हो सकता है। डिस्पाइट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द ड्राई एरियाज टू किक स्टार्ट द रेन एंड मूव द हीट फ्रॉम द वार्म एरियाज, यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ एरियाज में ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन ऐसे एरियाज जहाँ पर बारिशें कम होती हैं ये उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पर फ़िज़ाई दबाव कम हो और वहाँ पर साइक्लोन स्टार्ट हो जाए तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर बारिशें और हवा चलने की वजह से जो है वो बारिश हो सकती है। सो है यू कैन सी दिस इज अ साइक्लोन, ये इस तरीके से मूव करता है। ये एक सैटेलाइट पिक्चर है साइक्लोन की। हवा का बहुत ज्यादा दबाव जो होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ जो है सर्कुलर मोशन में हवा का जो है एक बगुला सा बन जाता है, और ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करता है। साइक्लोन्स जो है हमारे एरिया में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम साइक्लोन्स आते हैं अरेबियन सी में, क्योंकि ये वाटर बॉडीज की तरफ बनते हैं, तो अरेबियन सी में अगर साइक्लोन्स आते भी हैं तो दे मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, ये इंडिया की तरफ चले जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ जो है ये हमारे कोस्टल एरिया की तरफ ये मूव नहीं करते इतना ज़्यादा, और इस वजह से जो ये वेस्टर्न इंडिया की तरफ जो है ये मूव करते हैं रादर देन पाकिस्तान। ओके, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, किस तरीके से इनसे बचाव किया जा सकता है। रेगुलरली वॉचिंग वेदर अपडेट्स, यानी कि इसके लिए आपको वेदर अपडेट्स जो है उनको फॉलो करना चाहिए। बिफोर द साइक्लोन चेक द रूफ एंड कवर इट विद अ नेट और बैम्बू। चेक द वॉल्स, पिलर्स, डोर्स एंड विंडोज टू सी इफ दे आर सिक्योर। कवर द मड वॉल्स विद पॉलिथीन और कोकोनट वॉल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कोकोनट की बड़े बड़े जो बैम्बूज होते हैं उनसे एक नेट बनाया जाता है, और उनसे जो है छतों को कवर किया जाता है टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, ताकि जो है वो हवा तेज चलने की वजह से उखड़ ना जाए। इसके अलावा विंडोज को सिक्योर करना चाहिए, वेदर अपडेट्स को देखना चाहिए, और अगर आपकी कच्ची जगह है और कच्ची दीवारें हैं तो उनको पॉलीथीन से कवर कर देना चाहिए, ताकि जो साइक्लोन की वजह से बारिशें आएंगी उसकी वजह से दीवारें गीली होकर गिर ना जाएं। इसके अलावा कुछ और प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि ऐसे इलाके जहां पर साइक्लोन्स एक्सपेक्टेड होते हैं उस जगह से दरख्तों को काट देना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर दरख्त ज्यादा होंगे तो वो बिल्डिंग्स के ऊपर गिर सकते हैं या लोगों के ऊपर गिरकर नुकसान कर सकते हैं। सो ट्रीज एंड श्रब्स शुड बी ट्रिम्ड। और इसके अलावा जितनी भी जब साइक्लोन आ रहा हो, यानी कि जब इतनी तेज हवा या बारिश चल रही है, तो उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं उनको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए।
दिस इज अ बैम्बू नेट जो कि रूफ्स को प्रोटेक्ट करती है ड्यूरिंग साइक्लोन्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो साइक्लोन के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। हर साइक्लोन जो है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन कब होता है, उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन कब बनता है, जब उसकी स्पीड 74 माइल्स पर आवर से जो है वो एक्सीड कर जाती है, तो हम उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन दो तरह के होते हैं, हरिकेन और टाइफून उनको कहा जाता है। और इनके नाम अलग अलग क्यों हैं, ये है एक ही चीज, ये साइक्लोन ही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है। इसको हम क्यों हरिकेन और टाइफून कहते हैं, क्योंकि इनके रीजन की वजह से, इनके रीजन की वजह से हम किस तरीके से कहते हैं कि जो अटलांटिक और ईस्ट पैसिफिक पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम हरिकेन कहते हैं। इसके अलावा जो टाइफून है वो वेस्ट पैसिफिक में आते हैं, पैसिफिक ओशन में आते हैं। तो ये सिर्फ है ये सब साइक्लोन ही। साइक्लोन असल में एक खास स्पीड से जब हवा चलती है और उसका जो है हवा ज्यादा हो जाती है, वो 74 माइल्स पर आवर है, तो उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। इट कुड बी डिस्ट्रक्टिव। और वो जो है उनको हम टाइफून कहते हैं या हरिकेन कहते हैं। जो वेस्ट पैसिफिक में आते हैं वो टाइफून होते हैं, और जो ईस्ट पैसिफिक में आते हैं या अटलांटिक ओशन में आते हैं उनको हम हरिकेन कहते हैं। इसके अलावा tropical cyclones are called just cyclones in the Indian Ocean and near Australia. So my dear students, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के करीब और इंडियन ओशन में और इसके अलावा अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स आते हैं, दे आर जस्ट साइक्लोन्स बिकॉज दे आर नॉट वेरी डिस्ट्रक्टिव। Then comes the avalanches. Avalanches, a large mass of snow, ice, soil or rock mixed with other materials like wood, stones, etc. falling down from a slope as an avalanche is known as an avalanche. It is triggered when the material on the slope become loose from its surrounding. While moving downward, it carries additional material with it. So my dear students, avalanche क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बर्फ जो है वो स्लाइड डाउन करती है और अपने साथ बहुत सा डिफरेंट मटीरियल, मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर और इस तरह की चीज़ें अपने साथ लेके आती है, तो दे कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो इनसे, इन एवलांचेस से किस तरीके से बचा जा सकता है? This is an avalanche. You can see the moving of the snow from the slope. This is called an avalanche. अब इनके small avalanches are made up of ice, snow and air. The large avalanches are made up of rocks, trees, debris and even mud resting on low slopes. So इनके safety measures क्या है? Disposing the snowpacks by artificial triggering, guide the residents about the emerging migration, trapping it by control measures. So my dear students, इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है? avalanche के लिए आप लोगों को पहले से बता दें कि मौसम अगर इतना ख़राब है तो हो सकता है कि बर्फ़ का तोदा कोई गिरे और उसकी वजह से जो है बड़ा सा ग्लेशियर कोई गिरने से भी एवलांच आती है और उसकी वजह से आप जो है वो जगह को एवैक्यूएट कर दें। इसके अलावा नेट्स लगाए जा सकते हैं, बाउंड्रीज बनाई जा सकती हैं और आर्टिफिशियल तरीके से भी बर्फ़ के तोदों को जो है वो तोड़ा जा सकता है ताकि वो जब वो बड़ी तादाद में गिरेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। उनको थोड़ा थोड़ा करके अगर तोड़ा जाएगा तो वो इतना नुकसानदेह नहीं साबित होंगे। इसके अलावा क्लाइमर्स जो हैं उनके लिए भी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं कि उनको चाहिए कि वो हेलमेट्स ज़रूर पहने। इसके अलावा स्टीप्स और स्लोपी एरियाज जो हैं उनका इंतखाब ना करें वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, क्योंकि ये भी ट्रिगर करते हैं एवलांचेस को। So my dear students, now is the time for evaluation. So quickly tell me that what is a cyclone? It is the moving wind which moves in a circular direction towards the low atmospheric pressure. And what is an avalanche? It is the movement of snow or ice from a slope in a very large quantity. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, what is natural disaster? A natural occurring event which destroys or harms the human beings, vegetation and animals and the property is called a natural disaster. What caused the 2022 floods in Pakistan?
the heavy monsoon rains caused the 2022 floods in the Pakistan. What is a cyclone? You can take help from the book. It is the movement of the high winds towards the low atmospheric pressure. What is an avalanche? It is the movement of ice from slopes in a large quantity. What is safety measures mountain climbers must adopt? They must wear helmet to protect themselves and must wear safety jackets to protect themselves from the avalanches, and they must also adopt such tracks which are less steepy and less slopy, और जहाँ पे loose ice ना हो. Okay, my dear students, for homework, you will do question number 3 and 4 on page number 4 given in exercise A. How floods occur? What is cyclone? You will do it in your notebooks, and you will do research and analysis number 8. Ask your parents and grandparents if they have observed any natural disaster, flood, earthquake or avalanche in their lives. Ask them what safety measures they had taken in that situation. Now compare with the safety measures you had learned. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसके बारे में सोचें तो अभी रिसेंटली हमने कोविड-19 जो है सब ने उसका सामना किया. आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, आपने भी. तो उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस हम क्या लेते थे कि हम बीमार ना हो जाए. वी यूज टू वेयर मास्क, वी यूज टू सैनिटाइज हैंड्स, वी यूज टू टेक अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल डिजास्टर और इसको हमने फेस किया और इससे हम इस तरीके से अपने आप को बचाते थे. Okay, my dear students, the wrap up of the lesson is natural disasters are those disasters that occur naturally. It includes floods, cyclones, avalanches, earthquake, and COVID-19 is also a natural disaster. So, my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.